اور سب سے پہلے بات ہوگی امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی اور مفاہمتی یادداشت ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ انقرہ میں نیٹو چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا ایرانیوں سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا، ان سے جنگ بندی ختم ہو گئی ہے، میرے خیال سے ایم او یو بھی ختم ہو چکا، ایران سے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر ان کے پاس جوہری ہتھیار ہوتا تو اسے استعمال کرتے۔ Ceasefire done. Is the MOU dead? To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They had a nuclear weapon. They'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. Frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. I don't like these people, despite the fact that I'm very upset with NATO, that we pay far, far too much. Billions and billions of dollars too much. Because it's unfair, because we're protecting them. So we protect them, but they're not there for us. دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے دونوں جانب سے آنے والے بیانات سے امن کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اگر یہ حملے نہیں روکے تو جنگ کا دوسرا راؤنڈ شروع ہونے کا خدشہ ہے۔ دونوں جانب سے صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ تین اینٹیز کو جو ہائیلی انسٹیبل ہیں مذاکرات کی میز پہ لانا ویسے ہی بڑا مشکل تھا، اور ابھی آئی تھنک جو حالات بن رہے ہیں جو کم از کم سامنے نظر آ رہا ہے کہ اٹس بیکمنگ ویری ویری ڈیفیکلٹ، اور خدا نہ خواستہ امن کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور میرے خیال میں آر جی سی کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ پھر اسرائیل کی گیم کر رہے ہیں، یہ اتنا آپ میں صبر نہیں ہے اور آپ جو اس پہ کر رہے ہیں، پھر دوسری طرف جو ہے اسی طریقے سے امریکہ تو پھر اپنے زوم میں اٹیک کرتا ہے۔ مے بی آئی تھنک اگر کوئی انٹرونشن ہوتی ہے اس میں کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ حملے بڑھتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ جنگ کا دوسرا راؤنڈ شروع ہو جائے گا، وچ ول بی ہائیلی انفارچونیٹ۔ دیکھیے جی، اپیرنٹلی اگر اس کو ان آئسولیشن دیکھیں اس بیان کو تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کو ایک تشویشناک بیان لگتا ہے، اور ایک ایسے امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے جو کہ اس میں ڈائریکٹ سالسی میں جو ہے وہ ایک فریق ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو ضرب زیرو کر دیا۔ یہ پروسیس ہو رہا ہے، یہ جو پیس کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ تو اس میں ٹائم تو ضرور لگتا ہے۔ تو یہ ٹرمپ صاحب نے دیا ہے، ایران کی قیادت نے بھی اسی قسم کے بیان دیے ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان اور قطر اور سعودی عربیہ اور ترکیہ کی ایفرٹ سے دوبارہ جو بات چیت ہے وہ مل جل کے بات چیت کی طرف آئے گی اور وار کی طرف بات نہیں بڑھے گی۔ اگر اسرائیلی لابی کی انفلوئنس اور زور لگانے پر جنگ کی کوشش بھی کی جائے تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دنیا بھی ان کے سامنے ہے، ان کے ملک اور مڈ ٹرم الیکشن بھی سامنے ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ نوشتہ دیوار ہے کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ عباس عراقچی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کے تیل کی فروخت پر پابندیوں کی بحالی، امریکی حملے اور حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی کارروائیوں نے جنگ کے خاتمے سے متعلق ایم او یو کے اہم اور بنیادی حصوں کو غیر مؤثر کر دیا۔ عباس عراقچی نے کہا ایران اپنی سالمیت، قومی خود مختاری، قومی سلامتی کے دفاع سے گریز نہیں کرے گا۔ عراقچی نے ان خلیجی ممالک کے لیے بھی ایک انتباہ جاری کیا ہے جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں۔ عراقچی نے کہا کہ اگر ایران پر حملے کیے گئے تو تہران اس جگہ کو نشانہ بنائے گا جہاں سے حملے کیے گئے۔ آبنائے ہرمز میں 3 تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے پر امریکہ نے ایران پر حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے بھی بحرین اور کویت پر امریکی اہداف پر حملے کیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایران کو بین الاقوامی آبی گزرگاہ میں معصوم افراد پر مشتمل تجارتی عملے کو نشانہ بنانے کی بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ امریکہ نے ایران پر تیل فروخت کرنے کی پابندی دوبارہ عائد کر دی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق فیصلہ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے بعد کیا۔ ایران کو آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملوں کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی پابندیوں کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد اضافہ ہو گیا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے گزشتہ ماہ ایران کو 21 اگست تک تیل فروخت کرنے کی اجازت دی تھی، جسے اب 17 جولائی تک محدود کر دیا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کارروائی کا مناسب جواب دیں گے، صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ تیل برآمدات پر پابندی لگانا ایم او یو کی شیک 10 کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ایکس پر لکھا، ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیاں بھی شیک 1 اور 2 سے متصادم ہیں۔ لیبنان میں اسرائیلی اقدامات کی امریکی حمایت بھی معاہدے سے انحراف ہے۔
धमकी आमेज बयानात भी MOU की मुसलसल खिलाफ वर्जी हैं। ईरान अमेरिका को खिलाफ वर्जियों के नताइज से आगाह कर रहा है। कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन इक़दाम करेगा। अमेरिका से मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी बढ़ने से बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। लंदन ब्रेंट खाम तेल 6.39% इजाफे से फ़ी बैरल $78.88 पर पहुँच गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में 6.5% इजाफा देखा गया। फ़ी बैरल कीमत $75 हो गई। ईरान के मसले को खुश असलूबी से हल करना चाहिए। नेटो को दिफा के लिए मजीद जिम्मेदारियां लेना होंगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अंकारा में नेटो सरबराही इजलास से खिताब। कहा, यूरोप अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने वाले इकदाम से दूर रहना होगा। इत्तेहाद ही सलामती का ज़ामिन है। किसी भी किस्म के इख्तलाफात से बचा जाए। इत्तेहाद तमाम रुकन ममालिक की सलामती के लिए इंतहाई अहम और नागुज़ीर है। हमें यूरोपीय ममालिक और समंदर पार के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने वाली हर चीज़ से दूर रहना होगा। चीन ने अमेरिका और ईरान से ताकत के इस्तेमाल से गुरेज का मुतालबा किया है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का ये कहना है कि अमेरिका और ईरान दोबारा जंग की जानिब जाने से गुरेज करें। अमेरिका और ईरान तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। तनाज़ात का हल ताकत नहीं मुज़ाकरात हैं। ख़ित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। कतर ने भी ईरान और अमेरिका से कशीदगी में कमी पर जोर दिया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जसद खाकी इराक के शहर नजफ पहुंचा दिया गया। जसद खाकी नजफ के बाद करबला ले जाया जाएगा। कुम्भ जुलूस से जनाजा में लाखों अफराद अली खामनाई को अलविदा कहने आए। सुर्ख परचम उठाए खामनाई के रास्ते पर चलने का अहद किया। अहम खबर देंगे आपको। DGISPR कुछ देर बाद बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGISPR कुछ देर बाद बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमला हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है इस हवाले से आगाह किया जाएगा। तो DGISPR कुछ देर बाद बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज से ही मंदी देखी जा रही है। अंजुम वहाब से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अंजुम, बताइए कितने पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है इस वक्त स्टॉक मार्केट? जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में कारोबार के इख्तिताम हो चुका और इस वक्त मार्केट 5 हफ्तियाती हदूद गिर चुकी हैं। तकरीबन 4,626 पॉइंट मार्केट में गिर चुके हैं। 1,81,629 पॉइंट पर मार्केट का कारोबार का इख्तिताम हुआ है। बशरी का वता की ताज़ा तरीन सूरत हाल अमरीकी सदर ट्रंप के बयान के बाद ईरान के साथ जो कशीदा सूरत हाल दोबारा हो गई है। स्टॉक मार्केट ने मनफी जोन में आज आगाज किया था और ये सूरत हाल सारा दिन देखी जाती रही और तमाम सेक्टर जिनमें बैंकिंग का सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो बेहतर परफॉर्म कर रहे थे वो तमाम सेक्टर के जो शोबे हैं वो सारे नीचे आ गए हैं और ये सूरत हाल फरोख्त का दबाव बहुत ज्यादा देखा गया है। पैनिक सेलिंग ज्यादा देखी गई है और सरमायाकारों ने भरपूर तरीके से शेयर को फरोख्त करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। मार्केट माहिरीन का यही कहना था कि ये सूरत हाल बरकरार रही तो स्टॉक मार्केट में बिक्री की सूरत हाल अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही। आपका शुक्रिया अंजुम वहाब तफसीलात के लिए। पाकिस्तान समेत बैनुल-अक़वामी मार्केटों में सोना और चांदी की कीमतों में कमी देखी जा रही है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी ऑन्स सोना $47 सस्ता होकर $4,078 पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान में फी तोला सोना $4700 कम हुआ जिससे कीमत $4,30,236 हो गई। 10 ग्राम सोना $4,029 कम होकर $3,68,858 का हो गया। सराफा एसोसिएशन का कहना है कि पाकिस्तान में फी तोला चांदी $138 कमी से 6,421 रुपये में फरोख्त हो रही है। कराची के करीब निजी कार्गो तैयारा समंदर में लापता हो गया है। K2 एयरवेज इंतजामिया के मुताबिक कार्गो बोइंग तैयारा शारजा से कराची आ रहा था। तैयारे में 5 अरकान सवार थे। शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा लापता हो गया। तैयारे में सवार 5 अफराद में पायलट रिजवान इदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर मोहम्मद तौफीक, इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और मोहम्मद हामिद शामिल हैं। मजीद बता रही हैं उरूज रिजवी जो इस वक्त इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी के अहल खाना के हमरा मौजूद हैं। रात जो है शारजा से कराची आने वाला K2 एयरवेज तैयारा लापता हुआ जिसमें अमले के 5 अफराद शामिल थे जिनमें 2 पायलट, 2 इंजीनियर और 1 लोडेड मास्टर थे। इस वक्त हम मौजूद हैं आरिफ सिद्दीकी जो कि इंजीनियर थे और उनके साहबजादे भी हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा कि अभी तक कौन कौन लोग आपके साथ ताउन कर रहे हैं? वालिद साहब जो है मेरे K2 के एम्प्लॉय नहीं थे, वो नॉर्दर्न टेक्निक के एम्प्लॉय थे और नॉर्दर्न टेक्निक के जो मैनेजर हैं वो कल आए थे, वो अभी भी राब्ते में हैं। और दूसरा पाकिस्तान नेवी के कुछ अफराद से रब्ता हुआ है और PAF की जानिब से जो है वो रब्ता हुआ है। 8 औलादें उनकी, 5 बेटे हैं 3 बेटियाँ और
एक वालदा है हमारी। फिलहाल तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। आरिफ सिद्दीकी जो कि इंजीनियर थे और उनके साहबजादों ने बताया कि उनके साथ अमला जो है कोऑपरेट कर रहा है, उनको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, जैसी कोई सुराग मिलता है तो इनको बताया जाएगा। हमारी भी ये दुआ है कि आरिफ सिद्दीकी साहब समेत अमले के तमाम जो 5 अफराद जो गुमशुदा हैं वो अपने खैर खैरियत से घर को पहुँच जाएँ। शारजा से कराची आते हुए कार्गो जहाज़ लापता हो गया है। जहाज़ के कैप्टन रिजवान के अहल खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। फैमिली के मुताबिक ताहाल किसी मुताल्लिक़ा इदारे या हुकूमत सिंध ने राबिता नहीं किया। नुमाइंदा खुसूसी नज़ीर शाह जो इस वक्त कैप्टन रिजवान के घर पर और 2 बेटों और बेटियों के साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नज़ीर बताइए क्या मौक़िफ़ है इनका? शारजा से कराची आने वाला कार्गो K2 एयरवेज जो थी वो लापता हो गई थी, जिसमें कैप्टन समेत 5 अरकान उसके अंदर मौजूद थे। जहाज़ के कैप्टन रिजवान है, उनके जो अहले खाने उनके साथ मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले उनके बेटे से बात करूँगा। कब खबर मिली? हमें ये खबर मिली कोई 4-5 घंटे के बाद इस वाक़ये के, वो भी हमें न्यूज़ से मिली। कुछ हमें मालूम नहीं कि हमारे अब्बा किधर हैं, उनकी कंपनी कहाँ है, कुछ भी नहीं मालूम, कोई हमें कुछ नहीं बता रहा। जिसका नंबर हमारे पास है हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे से कोई कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। सिंध गवर्नमेंट से, हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारे बाबा को हमारे घर लेके आए। इस जहाज़ के जो कैप्टन हैं वो एयरफोर्स में अपने ग्रुप कैप्टन भी रह चुके हैं। उनकी फैमिली की कंडीशन आप देख सकते हैं, सदमे से नडाल हैं। जो उनकी वाइफ है वो इस वक्त बात करने के काबिल नहीं है। अब तक किसी मुतल्लिका इदारे की जानिब से इनसे रब्ता नहीं किया गया। पाक बहरिया एयरफोर्स और दीगर की जानिब से जहाज़ की तलाश का अमल जारी है और भरपूर तरीके से ये ऑपरेशन भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर फैमिलीज़ को देखें तो वो परेशान है कि उनके प्यारे कब मिलेंगे और उनको कब हकीकत के बारे में आगाह किया जाएगा। जी, हुकूमत बलूचिस्तान ने मांगी में दहशतगर्द हमले के इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी हमले से कबल, दौरान और बाद की तमाम वाक़यात और सिक्योरिटी रद्दअमल का जायजा लेगी। कमेटी सिक्योरिटी इदारों की तैयारी, राब्ताकारी और SOPs पर अमल दरामद का भी जायजा लेगी। कमेटी गफलत, कोताही, ऑपरेशनल खामियों पर मुतालिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगी। मुआविन वज़ीर आला शाहिद रिंद ने कहा है कि कमेटी मांगी डैम सूबे की अहम तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इक़दाम तजवीज़ करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा हेड क्वार्टर्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीन के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकातें की। चीनी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला से मुलाकात में इंसदादी दहशतगर्दी, ताउन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इयादा किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दों की फंडिंग को हर सतह पर रोकने की ज़रूरत है। दहशतगर्दों की पुश्त पनाही, फंडिंग में मुलविस ममालिक के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। चीन के साथ सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स कायम की है। लिंग जीफेंग ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। मोहसिन नकवी और श्रीलंकन वज़ीर दाखिला आनंद विजयपाला की मुलाकात में पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला किया गया। इंसदाद मनशियात से लेकर कोऑर्डिनेशन, गैर कानूनी इमिग्रेशन और जाली पासपोर्ट सफ़र की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। कराची ली मार्केट में 6 साल के मोहम्मद वली को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। मकतूल बच्ची की बोरी बंद लाश घर के करीब से मिली। गम से निढाल वालिदैन इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बताया मुलजिम बच्चे का पड़ोसी है। मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। मुलजिम ने वीडियो बयान में कहा बच्चे को साथ वाली छत पर रखा था। 2 और साथी भी मुलव्वस हैं। नज़ीर शाह की रिपोर्ट।